tell you that every number in an array has a secret big brother, that too hiding just to its right? Exactly, that was my reaction. So today we are with a question that actually explains the statement. So hello coders, welcome back to my channel. I am Mishti Soni and today we are back with a new interesting and mazedar type of question, masaledar type of question, that's 496 next greater element. Okay, so this question is all about the number and the next greater number. So this question is one of the most important and a smart question that uses both stack and map to solve the question for itself. So today I'll explain you the question first because this question is not as easy to explain and as easy to understand like other questions. This is one of the most smartest question of all. Okay, so let's get into it. So in this question we are basically given two arrays, okay, nums1 and nums2. So nums1 is a subset of nums2. What does that mean? कि nums1 वो element contain करता है जो कि already nums2 में exist करता है, लेकिन हमें इसमें क्या return करना है? हमें पता है कि वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर 4 है तो हमें उसके राइट में कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 से बड़ा हो. अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है हमें सिंपली -1 रिटर्न करना है. जैसे 1 है तो 1 के बाद में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले जो आ जाए वो 3 है तो 3 रिटर्न करेंगे. 2 के बाद कुछ नहीं है तो -1 रिटर्न करेंगे. तो ऐसा ही मैंने भी कुछ सोचा और मैंने एक बहुत ईजी से अप्रोच लगाया कि क्यों ना दो फॉर लूप चलाते हैं, एक आई के लिए, एक nums1 के लिए, एक nums2 के लिए, और कंपेयर करा देते हैं दिस दैट. बट ट्रस्ट मी, it's not an optimized solution, and even that makes your code complicated and it doesn't shorts everything out. Okay, so we won't go for that brute force method, which is not also applicable for all the test cases, which fails at the test case of 11 actually. Overall, like from 16 out of 16 or 20 it fails at 11. So it's not that optimized code, so we'll go for the optimized version of this code. Okay, so let's get into the board. Okay, so we have been given 4 1 2, that's nums1. Okay, that is nums1. हमें दो array दिया हुआ है 1 3 4 2, and this is the second nums2. तो हमें दो ये दिया हुआ है, array दिया हुआ है. अब हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर 4 इसमें है तो 4 से राइट में अगर कोई भी नंबर बड़ा है तो हमें उस नंबर को रिटर्न करना, और अगर नहीं है तो हमें -1 एक न्यू एरे बनाना है, ठीक है, और उस एरे में स्टोर करवाना है ये वैल्यूज़ -1 फिर 1. क्या 1 के राइट मोस्ट में कोई नंबर उससे बड़ा है? अगर सबसे पहला ही नंबर बड़ा हो जाए तो ठीक है, अगर ये नंबर उससे बड़ा नहीं होता तो हम अगले नंबर पे चेक करते हैं. तो येस, दैट इज 3. ओके, फिर जब 2 की बात करें तो 2 के बाद कोई इतना बड़ा नंबर, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है जो उससे बड़ा हो, इसलिए अगेन -1. And that's what our output is. But अगर हम कोशिश करेंगे इसे brute force method से solve करने के लिए, that is really very complicated and it takes too much of time complexity. Okay, so हम क्या करेंगे, हम simply ये दोनों array को लेंगे और हम stack और map की help लेंगे. हम किसका help लेंगे? stack और map का help लेंगे. हम क्या करेंगे, एक stack बनाएंगे और एक hash map create करेंगे. ये मैं क्यों करूँगी, कैसे करूँगी, मैं आपको अब explain करती हूँ. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक stack लेंगे. ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा कोड लिख के देती हूँ सो दैट आप उस कोड को समझ सको कि मैं एक्चुअली कोड में कर क्यों रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती रहूँगी तो शायद हमें थोड़ा कम समझ में आए. तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे. int i equals to 0, i less than nums2 of length i plus plus. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करवाएंगे while not stack dot is empty and थोड़ा सा स्पेलिंग अभी इग्नोर करेंगे हम अगर कहीं मिस्टेक होता है. ठीक है, and stack dot b is greater than num then yeah, map dot put stack dot pop, and then here it goes down. Okay, and where this, and then again stack dot push num. I'm so sorry that I used this. I'm so sorry. We will either use the enhanced for loop in num equals to nums2. Okay, yeah, that's all. कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है. सबसे पहले तो मैंने एक enhanced for loop चलाया इस क्वेश्चन में. ठीक है, मैंने एक enhanced for loop चलाया है और मैं क्या कर रही हूँ, nums2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको num से डिनोट कर रही हूँ. तो सबसे पहले हमारा स्टैक पे दिखाएंगे. हमारा क्या है कोड, हमारा जो प्रॉपर कोड है वो लिखा हुआ है कि वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी. हमने क्या लिखा है कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी. अगर वो एम्प्टी नहीं है तब की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम सिंपली इसमें 1
पुश करवा देंगे, क्योंकि ये लूप चलेगा नहीं, तो फिर लास्ट लाइन जो है फॉर लूप का वो ये हो जाएगा स्टैक डॉट पुश। ठीक है, अब सेकंड में जब आएंगे तो 3 है, तो हम क्या चेक करेंगे कि जब 3 की बात होगी तो हम चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, नहीं स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, ये टेस्ट केस हम पास कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि जो स्टैक डॉट पीक है, पीक क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टैक डॉट पीक ना एक इनबिल्ट फंक्शन है जो सबसे टॉप एलिमेंट को बताता है, जो स्टैक का सबसे टॉप एलिमेंट होगा उसको डिनोट करता है। तो अभी स्टैक डॉट पीक क्या है, अभी स्टैक डॉट पीक जो है वो 1 है हमारा, ठीक है, और नम क्या है यहाँ पे 3 है, तो क्या 1 3 से छोटा है, हाँ अगर छोटा है तो हम एक मैप बना रहे हैं, हैश मैप बना रहे हैं, जिसमें हम मैपिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे हैश मैप बनाया होगा, हम ऊपर बना लेंगे कोड में, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूँगी, हम पेयर बनाएंगे। मैप क्या करता है, हैश मैप क्या करता है, बेसिकली की और वैल्यूज़ के पेयर में स्टोर करता है किसी भी वैल्यू को। बस हमने क्या किया, 1 ये जो स्टैक डॉट पॉप कराया मैंने, यानी कि जो स्टैक में ऑलरेडी था उसका पेयर मैं कर रही हूँ जो नंबर अभी आया है। यानी कि ये पेयर क्या बता रहा है, ये पेयर बता रहा है कि इस एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 1 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, वो 3 होगा। ठीक है, अब स्टैक में ये पॉप हो चुका है, अब स्टैक में पुश कर दो जो भी था, अब स्टैक में पुश हो गया 3। अब वापस से टेस्ट अगले नंबर आएंगे जब हम 4 पे आएंगे, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या स्टैक डॉट पी क्या है, 3 इज लेस देन 4, अगेन यस, हम सिमिलर काम करेंगे, हम मैप में दोबारा स्टोर करवाएंगे। स्टैक डॉट पॉप यानी कि 3 पॉप हो चुका है, और 3 को हम पेयर अप किससे कर देंगे, 4 से, जो कि नम है, उसको हम किससे पेयर अप कर देंगे, 4 से। इसका मतलब क्या है कि जो 3 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो क्या है, 4। हम यहाँ जो पेयर्स बना रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे कि जो मैपिंग का हम पेयर्स बना रहे हैं वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का पेयर, कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 3 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 4। ठीक है, और फिर स्टैक डॉट पुश कर देंगे 4। अब स्टैक में क्या आ गया 4। अब वापस से जब आएगा लास्ट पे चलेगा 2, नम चलेगा 2, क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, हाँ ठीक है, कोड चला। फिर हम चेक करेंगे क्या 4 छोटा है 2 से, क्या 4 छोटा है 2 से, नहीं, तो हम इसे पॉप नहीं करवाएंगे, हम इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं और सीधा 2 पुश करा देंगे। क्या पुश करा देंगे, यहाँ हमारा 4, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैं इसे काट नहीं सकती क्योंकि ये हमारा पॉप नहीं हुआ है, ये हमारा पॉप नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स आए। अगर मैं बात करूं पेयर की, तो हमारे पास इस पूरे कोड में सिर्फ 2 पेयर मिले हैं हमें मैप का पेयर किसमें किसमें मिला है, एक 1 का पेयर है हमारा 3 के साथ, ठीक है, और 3 का पेयर है हमारा 4 के साथ। क्या ये हमें समझ में आया, ये पेयर हमें कहाँ से मिल रहा है, ये पेयर हमें यहाँ पे इसके थ्रू मिल रहा है। ठीक है, अब हम सिंपल एक और फॉर लूप लगाएंगे, वो कोड में यहाँ लिखूंगी फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums1 डॉट लेंथ। अब हम nums1 पे चला रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। व्हाट डज दिस इनबिल्ट फंक्शन डू, व्हाट डज दिस इनबिल्ट फंक्शन डू, जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैप डॉट पुट एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हैश मैप का, वो क्या करता है, स्टैक हमें पेयर्स में वैल्यू स्टोर करवाता है। लाइक मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ मैप डॉट पुट एप्पल, और मैं उसको पेयर करवाना चाहती हूँ रेड कलर से, मतलब मैं किसी भी फ्रूट को पेयर करवाना चाहती हूँ उसके कलर के साथ, तो मैं ऐसे लिखूंगी मैप डॉट पुट एप्पल उसका की हो गया, रेड उसका वैल्यू हो गया। तो हम किसी भी की वैल्यू को ऐसे पुट करवाते हैं मैप के अंदर, ठीक है। तो ये मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट क्या है, अगर मैं कुछ उसमें इनपुट दे रही हूँ, पहला 2 इनपुट डलाता है उसमें, अगर मुझे उसमें कुछ चेक करना है, अगर वो है तो ठीक है उसे रिटर्न कर दो, अगर वो नहीं है तो सेकेंड केस को रिटर्न करो। सिमिलरली मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिखूंगी अगर nums1 ऑफ i है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर -1 रिटर्न कर दो। अब आप पूछोगे कि मैंने क्या लिख दिया कोड में, तो मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही थी उतनी देर से, मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास 2 पेयर है, 1 का 3 के साथ, ठीक है, और 3 का 4 के साथ। लेकिन हमें क्या पता है कि 4, 1 एंड 2 ये तीनों चीज़ हमारे nums1 में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो nums1 ऑफ i आया यानी कि 4 आया, क्या हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है, क्या की के फॉर्म में, वैल्यू उस पर नहीं जाते हम, क्या की के फॉर्म में हमारा 4 है, अगर है तो उसका वैल्यू दे दो, और अगर नहीं है तो -1 दे दो, ठीक है, -1 दे दो, मतलब अभी 4 नहीं है तो हमें क्या रिटर्न होगा, -1। हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम वापस से अगले एलिमेंट पे 1, क्या 1 इसके अंदर है, हाँ 1 इसके अंदर है, तो इसका सिंपल इसका जो पेयर है उसको रिटर्न कर दो। फिर 2 उसके अंदर है, नहीं तो इसका आंसर है -1। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर पा रही होंगी मैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस क्वेश्चन में,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम है. मैं इसका वापस से दोबारा वीडियो बना दूंगी. आई विल जस्ट री एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन until you are getting the question perfectly. ओके, सो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगी कोड पे. अगर वहाँ पे समझ में आता है ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी लाइन बाय लाइन कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ. इन केस आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. ठीक है, तो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. सबसे पहले क्यों ना हम एक स्टैक बना ले. हमें पता है और स्टैक किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम उसमें इंटीजर स्टोर करा रहे हैं. ठीक है, फिर हमारा स्टैक हो गया न्यू स्टैक दिस दिस दिस. ठीक है, मैंने मैप का यूज़ किया था, यानी कि हमें एक हैश मैप भी बनाना पड़ेगा. हैश मैप में हम इंटीजर डालेंगे और उसका की इंटीजर है और वैल्यू भी क्या है, इंटीजर है. वैल्यू भी उसका इंटीजर है. क्या हम इतना समझ गए. ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया मैप, न्यू हैश मैप एंड दिस. आई थिंक सो इतना तो प्रॉपर क्लियर ही होगा. इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में. ओके, एंड देन वील गो टू द क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं एक इनहैंस फॉर लूप चलाऊंगी. फॉर इंट नम, ये नम एक वेरिएबल है. इनहैंस फॉर लूप ऐसे चलता है कि इनहैंस फॉर लूप क्या करता है मैं आपको बता दूं. हम जैसे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, उस वाले फॉर लूप में हम इंडेक्स के साथ प्ले करते हैं. हम वहाँ पे इंडेक्स देते हैं. लेकिन जब हम इनहैंस फॉर लूप लेते हैं तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू देते हैं. अभी जो मैं नम, मान लो कि मैंने nums2 लिखा, ठीक है, इसमें मैंने nums2 लिखा, तो इसका मतलब है nums2 ये है. अब मैं इसके इंडेक्स पे बात नहीं कर रही हूँ. ये नम जो होगा डायरेक्ट इंडेक्स का वैल्यू लेगा, यानी कि सबसे पहले नम का वैल्यू क्या होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 2, यानी कि ये पूरा nums2 ही नम ले लेगा. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको तब तक चलाएंगे while stack it's not empty, stack dot is not empty. ओके, पहला and stack dot peak, जो स्टैक में अभी सबसे ऊपरी एलिमेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा टॉप एलिमेंट होगा, क्या वो छोटा है नम से. अगर वो छोटा है नम से तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली मैप डॉट पुट करना है. मैप के अंदर उसे पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, स्टैक डॉट पॉप, यानी जो ऑलरेडी स्टैक में था उसको हम पेयर कर रहे हैं नम के साथ, जो नंबर अभी आया है. अगर 1 ऑलरेडी स्टैक में था और अभी 3 आया है और अगर वो उससे ग्रेटर है, यानी कि वो एक पेयर बनाते, तो हम स्टैक डॉट पॉप यानी 1 और 3 का एक पेयर बनाएंगे. दैट्स इट. अब मैं इसके आगे क्या करूँगी, हमें सिंपली स्टैक में पुश कराना है, स्टैक डॉट पुश नम. दैट्स इट. ओके, ये पूरा लूप हमारा मैप में 1 का पेयर 3 और 3 का पेयर 4 ये हमारा इंसर्ट कर देगा, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया है. अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक और फॉर लूप चलाएंगे. इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन nums1 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस. और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपली चेक करेंगे मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट. अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरा वाला आंसर रिटर्न करेंगे. क्या मतलब है, nums1 ऑफ आई अगर है तो उसका वैल्यू रिटर्न करो. ठीक है, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करो. इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़. मैं आपको फिर से समझाती हूँ. मैप डॉट गेट डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, अगर nums ऑफ आई उसमें प्रेजेंट है, क्या मैप में मैंने कहीं भी 4 का पेयर बनाया है, नहीं बनाया है. इसका मतलब अगर पेयर नहीं है, अगर 4 एग्जिस्ट नहीं करता की में, तो जो सेकंड ऑप्शन देंगे हम, जैसे हम टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर ट्रू तो दिस वरना फॉल्स. सिमिलरली अगर ट्रू है तो उसका वैल्यू रिटर्न करो और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करो. एंड देन दिस इज नॉट, इट इज़ यहाँ एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे हम इक्वल्स टू, और हम यहाँ एक एरे बनाएंगे क्योंकि हमें एक एरे रिटर्न करना है. अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है. तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ nums1 डॉट लेंथ. मैंने यहाँ पे nums1 डॉट लेंथ क्यों लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक मिनट. सॉरी, हाँ, मैंने यहाँ क्या लिखा कि हमें जो भी, देखो ये 3 कैरेक्टर का nums1, तो हमें इसी का ना ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा, यानी कि जो नए एरे का लेंथ होगा वो भी 3 ही होगा. ठीक है, रिटर्न एरे. इसमें हम आई प्लस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी प्लस प्लस हो रहा है. और दैट्स ऑल. मैंने यहाँ आई नहीं लिखा, सॉरी, अभी एरर आ जाएगा. अब हम चेक करते हैं क्या हमारा सही है कोड. nums1 होगा, सॉरी, थोड़ा बड़ा मिस्टेक तो चलता है गाइज. अगेन देयर इज़ अ मिस्टेक, लेट मी चेक. तो हाँ, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ. हम छोटी मोटी गलतियाँ तो ऐसे करते हैं, जैसे लेट इट गो. ठीक है, तो ये हमारा दोनों टेस्ट केसेस यहाँ पास हो गया. अब इसे सबमिट करके देखते हैं कि कितना % बीट करता है. Okay, so our code beats 92% of the complexity and all, and that's a very good beating probability actually. So when we talk about the complexities, इसका time complexity जो होता होगा
वो है बिग O ऑफ n प्लस m। और वो क्यों होता है कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम जो m n नम पुट कर रहे हैं वो टोटली n टाइम्स कर रहे हैं जितना नम्स 2 का लेंथ है। और अगर हम यहाँ पे देखें फॉर लूप दूसरा चला रहे हैं n नम्स 1 ऑफ लेंथ के टाइम्स, यानी कि अगर इसका मैं n मान लूँ और इसका मैं m मान लूँ तो टोटल होता है बिग O ऑफ n प्लस m चलता है, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक में बेसिकली पूरा n एलिमेंट स्टोर होता है। मैपिंग में हम एट मोस्ट n मैपिंग्स कर सकते हैं, तो इसका ओवरऑल जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग O ऑफ n। ओके, so that's all for today's video. I hope you have really liked and enjoyed the video. If you have really enjoyed it, do like and subscribe to my channel. Okay then, मिलते हैं कल नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। Until then, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।